Good morning, class. Today I will again talk about another graph, that is OC characteristics curve. It means that these graphs also come under your control lab, and it will also check the quality of any product of any sample. It means that when we are talking about the quality, it means two things be clear. Quality means fitness for use. This single line I'm explaining in every class when just begin the lab, quality control lab. So let's see what our today aim is. Today aim is to plot operating curves, right, and compare the actual operating curves and theoretical operating curves. अच्छा, इसके साथ आपको एक चीज़ और करना है, डेट इज़ दैट कि सैम्पल गिवन है, कुछ एट्रीब्यूट्स प्लान के कुछ सैम्पल्स गिवन है, एंड वी हैव टू थिंक दैट कि व्हाट शुड बी द ऑपरेटिव कर्व्स विल बी। मीन्स हमें एक ओसी कर्व जनरेट करना है पर्टिकुलर सैम्पल के लिए। लेट्स सी बिफोर स्टार्ट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। मीन्स sample means just very simple that you have take a lot or you have take some units from one to another, but except sampling means what? Listen, अपन कंट्रोल चार्ट क्यों बना रहे थे? अपन कंट्रोल चार्ट इसलिए बना रहे थे बिकॉज वी हैव टू नो अबाउट द quality of process, the specification of our process, that whether our product is going on the desired conditions or not. एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मतलब अपन एक लॉट ले लिया 10 एंड वी हैव डिसाइडेड अर्लियर दैट इफ वी फाउंड द 3 डिफेक्टिव आउट ऑफ 10 आई विल रिजेक्ट। लिसन, suppose you are having a production company and you are having a lot of buyers is there, then every buyers have some criteria, have some sampling criteria कि I will take a sample of 10 and if I will find 2 defective out of them then I will reject your lot. Have you got it? Some buyers have other criteria that कि I will find the 3 defective, I will reject your lot. And being a production owners, you also know that you are having lot of supplier and you have also having some criteria for selecting the materials, for selecting the raw materials. Have you got it? So सवाल ये है कि अगर कोई 10 का लॉट हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर 10,000 का लॉट हो तो you just think about the macro chips, you think about the macro parts, or you think about there is a bundle, there is a lot of piston in which there is a box of piston in which 100 piston is there or 1000 piston is there. How can you decide that all of them are correct? Yeah, it is okay for me to use this piston in my car or where you want to use. Due to the process of sampling, you may choose that whether this lot is correct or not. Or for correcting that lot, you must just make some criteria कि randomly I will choose the 10 samples and then I will check that if 2 out of 10 sample is this correct or not as per my criteria, I will not consider this complete lot. Or someone is having other criteria that if in the lot of 20, in the sample of 20, 5 is defective, I will reject the lots. So we can say that simply when we are accept a sample and go through with sample and we accept the lot, this is called acceptance sampling. Okay? And acceptance sampling is doing on a work on a control chart, that is a statistical process control chart, in which we fix or we determined our some chart, we determined our some limits कि yes, this is within the limits, I am going to accept the sample. अब what the purpose of accepting sampling is? Why you are rejecting? If why you rejecting the 2 out of 10? Why? Because your criteria is very simple that if 2 parts I will find the defective out of 10, I will reject the lot. What the purpose behind it? The purpose behind it is very simple that we are
determine our quality level. We are checking the quality level of our supplier. और you may say that कि हम किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देने से पहले अपना भी क्राइटेरिया यहीं रख लेते हैं, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा व्हाट आवर क्वालिटी लेवल इज़. भाई अगर 10 में से 2 पीस डिफेक्टिव है तो हम 10 में से 2 कस्टमर को तो दुखी कर रहे हैं ना, और अगर 10 में से 4 है तब तो बहुत ही गड़बड़ है. तो इट मीन्स डैट आपने एक अपने क्वालिटी लेवल को प्री डिटरमाइंड कर लिया, फिक्स कर लिया कि हमें देना है. दूसरा, हम चाह रहे थे कि प्री डिटरमाइंड लेवल के अंदर ही हमारा क्वालिटी हो. हमारा क्वालिटी हो मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है वो क्वालिटी के अंदर हो. हम क्या करते हैं, जैसे एक लेथ के ऊपर या एक ऑपरेशंस मशीन्स के ऊपर कोई ऑपरेशंस हुआ है, हम इमीडिएट उसके 10 प्रोसेस को चेक कर लेते हैं, 10 प्रोसेस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. वंस वी फाइंड आउट कि दिस वन प्रोडक्ट इज़ नॉट करेक्ट in this lot, in this sample, we reject all those lot and try to remove that defect. Means try to find out first the cause, then we remove that. In last class I have discussed about it, that what the C chart is, what the P chart is, why cause effect diagram is useful for P chart. Have you got it? तो अब क्या है, देखो हमने क्या करा, अपना क्वालिटी लेवल अगर फिक्स कर दिया, हमने क्वालिटी को चेक कर लिया विद इन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो गए ज़रा बताना. लॉट ऑफ एडवांटेजेस देयर, लाइक इकोनॉमी, लेस हैंडलिंग डैमेज, फ्यूलर इंस्पेक्शन. बिकॉज क्या होता है, आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप व्हेन यू आर गोइंग इन अ शॉप टू परचेज अ ब्रांडेड शर्ट और परचेज अ लोकल शर्ट, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन टू? यू लुक फॉर 2 things. फर्स्ट, what your desire is, means design. If it is available in both, at the level, local level or at the branded level, then what you will do again? You will go for, if you will go for the local, you will check twice or thrice. But if you go for the brand, you no need to be check. Okay, ठीक है, लेके आ जाते हैं, सही होगा. तो ये एक कस्टमर के अंदर भी एक ये लेवल आता है. दूसरा, अगर हमने अपना प्रोडक्ट अपने प्लांट के अंदर बनाया है और हमने इसको यूज किया, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग्स को हमने उसी कर्व पे उसको स्टडी करी है, उस पार्ट्स को रखा है, तो डेफिनेटली हमारा जो इंस्पेक्शन है वो कम हो जाएगा. हैव यू गॉट इट? और अगर हमने इस तरह से इंस्पेक्शन किया तो डेफिनेटली आवर अपग्रेडिंग ऑफ द इंस्पेक्शन जॉब. ओके, एप्लीकेबिलिटी टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फ्रॉम वेयर एंड इंटोर टू लॉट रिजेक्शन, मोटिवेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. कि भाई हमें इसको अगर हम पूरे के पूरे लॉट को कर दिया, तो अब जरा बताओ कि जो बनाया होगा उस वर्कर्स उसके अंदर उसको कैसा लगा होगा. हैव यू गॉट इट? बट वो दोबारा मोटिवेट होकर काम करेगा कि यार ये पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो गया है, तो वी हैव टू गेट मोटिवेटेड अबाउट इट एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट. दैट्स वाई द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब हमने सिंपल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कर दिया, तो अब हम किस सैंपल को एक्सेप्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे, हमने इसके लिए प्लान बना लिया. प्लान मीन्स वी जस्ट फिक्स इट दैट, जैसे हम जैसे हमने सी चार्ट, एक्स चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट के अंदर बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स लिया था, ठीक ऐसे ही उसी कर्व के अंदर, ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर हम क्या करेंगे, 2 लेवल ले लेंगे, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल एंड लिमिटिंग क्वालिटी लेवल. कि भाई इससे नीचे जाएगा तो हम रिलीज कर देंगे, नहीं लेना है. हम देखेंगे 2 तरह का रिस्क यहाँ आता है, एक प्रोड्यूसर रिस्क, अनदर वन इज कंज्यूमर रिस्क. लिसन, दिस 2 रिस्क आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वाई? बिकॉज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रोड्यूसर रिस्क? प्रोड्यूसर रिस्क का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं 20 के लॉट में, और अगर 1000 प्रोडक्ट में से किसी ने 5 के सैंपल स्लॉट निकाल लिए और हर 5 में से 5-5 लिया, और उसमें से अगर उसने कह दिया कि हमारा 90% है लेवल, यानी एक भी सैंपल अगर हर 5 में से गलत हो गया तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा. तो अगर रिजेक्ट हो गया तो किसका रिस्क हुआ बेटा? प्रोड्यूसर रिस्क हुआ. और अगर एक्सेप्टेड हो गया और वो सैंपल गलत चला गया तो किसका रिस्क हुआ? कंज्यूमर रिस्क हुआ. या अगर उसने ले लिया तो कंज्यूमर रिस्क हुआ. तो हमें करना क्या होता है, चेक करना होता है कि क्यों हम तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो विल चेक ऑन डैट कि कैसे से कैसे दोनों रिस्क को कम किया जाए. हैव यू गॉट इट? देन वी गो फॉर लिमिटिंग क्वालिटी लेवल की. भाई कि ये जो लिमिटिंग क्वालिटी लेवल मीन्स एक टॉलरेंस लेवल है, इससे उधर जाने पे प्रोड्यूसर को नुकसान है, इससे ऊपर जाने पे इसको नुकसान है. ओके,
जब आपको नुकसान पता चल गया तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कितने पार्ट्स डिफाइंड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है हमारा वो हमें पहले दे चुका है। आवर कस्टमर है गिविंग द प्रीवियस डेटा ऑफ अबाउट दैट रिजेक्शन कि भाई इफ़ यू आई विल फाइंड द 10% रिजेक्शन और 20% और 12%, देन आई विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट। इट मीन्स दैट कि वी हैव टू फिक्स द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव दैट डिफाइंस कंज्यूमर्स रिजेक्शन पॉइंट, कि हमारा जो कस्टमर है व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट, व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट मीन्स ऑन हाउ मच परसेंटेज इफ यू फाइंड द डिफेक्ट इन अ लॉट दे आर रिजेक्टिंग द आवर प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट कि इन अ ओसी कर्व all these things are important. Yeah, in a sampling all these things are important, that for a particular sample what the acceptable quality level is, what is the limiting quality level is, what is the defective percentages, what is the customer risk, what is the producer risk. Okay, it is very clear now. तो अपन ओसी कर्व के अंदर क्या चेक करेंगे? AQL चेक करेंगे, LQL चेक करेंगे, अल्फा चेक करेंगे, बीटा चेक करेंगे एंड LTPD चेक करेंगे। इट इज़ वेरी क्लियर? ओके, नो अगर कोई बोला जाए कि कैसे होता है, कैसे इसके एप्लीकेशंस हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आपके पास 3 चीज़ें गिवन होगी। पहला लॉट साइज गिवन होगा, सैम्पल साइज गिवन होगा, एक्सेप्टेबल नंबर्स गिवन होगा एंड डिफेक्टिव आइटम्स आपके पास होगा। अगर डिफेक्टिव आइटम्स सपोज ये एक्सेप्टेंस नंबर से कम है या बराबर है तो अपन लॉट को एक्सेप्ट कर देंगे। अगर डिफेक्टिव लेवल एक्सेप्ट नंबर से ज़्यादा हो तो अपन रिजेक्ट कर देंगे। पॉइंट शुड बी नोटेड हियर। अब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सेप्टिंग इक्वल टू और लेस देन? इट मीन्स दैट इफ अ कस्टमर वांट दैट कि I will accept your 1 defect out of 10 or I will accept 2 defect out of 10. Have you got it? It means that if the number of defect is D, okay, means 2, and what the customer acceptance is कि चलो 10 में से 2 डिफेक्ट हुआ तो चलेगा, तो मीन्स या तो 2 से कम हो यानी 1 हो या फिर 2 है तो बराबर है, इट मीन्स हम लॉट को एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये 2 से ज़्यादा है, जो हमारा एक्सेप्टेंस लेवल था 2, अगर ये 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। तो यू शुड रिमेंबर दिस 3 नोटिफिकेशन दैट लॉट साइज एंड एक्सेप्टेंस साइज एंड एक्सेप्टेंस नंबर रिलेशन। इट इज़ वेरी क्लियर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैम्पल साइज एक्सेप्टेंस नंबर। लॉट साइज मीन्स अब हमारे पास हमने कहा हमें 1000 लॉट्स मोबाइल का चाहिए, ओके। अब हम 1000 लॉट में से उसको पहले बोल चुका हूँ कि यार मैं आपके 30 मोबाइल को निकालूंगा रेंडमली, तो हमारा सैम्पल साइज कितना हो गया? 30। यहाँ n कितना हो गया बेटा? 30। अब हमने कहा उस 30 में से अगर हमारे 5 मोबाइल अगर गलत भी रहा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इट मीन्स व्हाट आवर एक्सेप्टेंस नंबर इज 5, डिफेक्टिव आइटम इज 5। इट इज क्लियर नाउ? एंड इफ defective items less than C or equal to C, I will accept your lot. If it is greater, I will reject your lot. So you should remember all these notations. अब बात करते हैं जो ओसी कर्व्स कैलकुलेशंस है वो कैसे करते हैं अपन। आपको नोटेशंस पता चल गया तो यू हैव टू नो दैट हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ ओसी कर्व्स। तो फॉर कैलकुलेटिंग ओसी कर्व्स देयर आर 2 ways. फर्स्ट वन इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सेकंड वन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस। इन जनरल अपन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये एक तो कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी पे होता है, दूसरा आर इनफाइनाइट नहीं होता और पी चेंजेज होता रहता है। इनके जो वैल्यूज़ हैं पी एट्रीब्यूट्स वो चेंजेज होता रहता है, तो इन जनरली यूज़ नहीं करते हैं। बट अपन पॉइजन्स वैल्यू यूज करते हैं, पॉइजन्स फार्मूला यूज करते हैं और पॉइजन्स के भी एक लिमिट्स हैं। जैसे सॉज ऑफ बैच साइज एन मस्ट बी 1/10 ऑफ टोटल बैच साइज ऑफ 10। जो सैम्पल साइज है एन क्या है बेटा आपको बता रखा हूँ लॉट साइज, और छोटा एन क्या है? सैम्पल साइज। तो सैम्पल साइज हमेशा 1/10 ऑफ द टोटल बैच साइज से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अपने 100 का सैंपल साइज ले लिया, राइट, 100 का लॉट है अपने पास, तो अपना सैंपल साइज या तो 10 होगा या 10 से कम होगा। ऐसा नहीं है कि 100 के अंदर 20 सैंपल हो जाएंगे फिर। हैव यू गॉट इट? है ना? कभी कभार क्या होता है जब n छोटा होता है तो p
एट्रीब्यूट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पे भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो एक छोटा सा ग्राफ दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके स्क्रीन पे कि आपको अच्छे से दिखे। देखो अब हमने यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक तो हमने पी ए दे दिया और दूसरा हमने पी बी दे दिया, राइट। तो जब हमने पी और पी बी पुट कर दिया है, राइट, तो अब देखो इधर जो पी है जो पॉइंट्स के अंदर दिख रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द डिफेक्शन फ्रैक्शंस कितने हो सकते हैं। और इधर जो पी ए दिख रहा है ये हम बात करते हैं इनके नंबर्स, इनके साइज की कहाँ से कहाँ तक कितना वेरी कर रहा है। ओके, तो इट मीन्स डैट कि जो हमने एक्सेप्टेंस नंबर और सैंपल साइज रखा है दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान रखना। अब अगर एक्सेप्टेंस नंबर डिक्रीज हो रहा है तो सैंपल साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। और अगर जैसे लार्जर सैंपल साइज हो गया तो जो अपना डायग्राम आपने इस तरह से देख रखा था ये क्या होगा बेटा, ये कर्व हो जाएगा। ओके, इट मीन्स डैट आप ऐसा कह सकते हो कि जो आइडियल कर्व्स होता है वो जो हमेशा होता है वो परफेक्टली परपेंडिकुलर होता है, यानी फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स के परफेक्टली परपेंडिकुलर होगा आइडियल कर्व्स। हैव यू गॉट इट? ये किसकी प्रॉपर्टीज थी। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो देखो आपको फिर से दो डायग्राम्स दिख जाएगा, राइट। अब ये हमने अलग अलग फ्रैक्शन डिफेक्ट्स के लिए ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, वापस से फ्रैक्शन डिफेक्ट्स ले लिया 0.1, 0.3, 0.5, 0.7। अब पहले इसी का देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक का देखते हैं फिर दूसरे का देखेंगे। जब हमने इतना ले लिया तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस हमने लिखा है 0, 25, 50, 75, 100। ओके, सबसे पहले आपको एक चार्ट दिख रहा होगा कि जब n 50 था और स्मॉल n 5 था, तो इस केस में देखो हमारे पास a 0 है, इसमें भी a 0 एक्सेप्टेंस 0 है, इसमें भी 0, इसमें, मतलब इट मीन्स डैट कि सारे के सारे चार्ट्स हमारे जो हैं सो हमने दोनों के बीच में ड्रॉ कर लिया है कि भाई 0.7 से बीच में क्या होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन डिफेक्ट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस के बीच में चार्ट ड्रॉ किया है। ठीक ऐसे ही अगर हमने सैंपल साइज चेंज कर लें तो देखते हैं, अगर सैंपल साइज हमने इधर बड़ा कर दिया n 1000, हैव यू गॉट इट, n 200, n 100, तो देखो इनका जो चार्ट्स है ये देखो थोड़ा सा कम कर्वी हो गया ना, यस या नो। तो क्या ये आइडियली परफेक्ट परपेंडिकुलर है? नहीं है ना। इट मीन्स डैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ चार्ट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट। अब देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है ये कैसे काम करता है। तो देखो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो देखो जैसे एक ओसी कर्व दिख रहा होगा आपको, राइट, देखो ढंग से, हैव यू गॉट इट। अब देखो क्या ये आपको ग्राफ की तरह दिख रहा है, यस या नो। अब देखो इसके अंदर हमने क्या करा है कि दो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कर रखा है, डॉटेड लाइन है देखो इस ग्राफ को, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने कहा कि अगर 90% प्रोबेबिलिटी है तो हम एक स्लॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे विथ 5 डिफेक्टिव आइटम्स। हैव यू गॉट इट? देखो प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितना लिखा है हमने, 0.5। ओके, एंड इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस 90% लिखा है। और अगर 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट विथ 24% डिफेक्टिव आइटम्स, अगर हमने एक लॉट के अंदर 24% डिफेक्टिव आइटम रख दिया है तो डेफिनेटली 10% ही प्रोबेबिलिटी है कि इस लॉट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। हैव यू गॉट इट? तो इस चार्ट से अपने को ये पता चलता है जनरली कि एक लॉट के अंदर कितना डिफेक्टिव रखेंगे। अगर इतना डिफेक्टिव रख देंगे तो कंज्यूमर्स को कितना रिस्क होगा और जो अपन बना रहे हैं अपने को कितना रिस्क होगा। हैव यू गॉट इट? तो जनरली अपन अब कह सकते हैं कि इस चार्ट्स के अंदर हम अगर इस चार्ट को ड्रॉ कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कितना % डिफेक्टिव आइटम्स अगर रखें तो चेंज हो जाएगा। अब देखो जो हमारा एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस के अंदर हम क्या रखेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स लिखेंगे 0.1, 0.2, 0.5, 0.10 इस तरह से। ओके, वाई एक्सिस के अंदर हम रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस फॉर एक्सेप्टिंग अ लॉट। ओके, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट इंक्रीजेज एक्सेप्टेंस लॉट डिक्रीजेज। देखो तुम देखो जब 90% से तुम 80% पे भी ले लो तो कुछ इस तरह से आएगा। तो उस वक्त ऑलमोस्ट 0.5 और 0.10 के बीच में कहीं पर ये लाई करेगा, यस या नो।
तो अब हम इससे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पोर्शंस बढ़ता जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। हैव यू गॉट इट? तो अब ये पता चला आपको कि ओसी कर्व के अंदर हमें दो चीज़ जनरली ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ लॉट। ओके, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट पोर्शंस ऑफ डिफेक्ट आइटम इंक्रीज करता जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस फॉर एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ कम होता जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनी चार्ट्स और फॉर एनी ओसी कर्व्स। अब अभी हमने आपको समझाया था क्या होता है, इधर देखिए। अब देखो इसी चार्ट को फिर से देखते हैं, राइट। जब अपन इस चार्ट को बनाया था और इस चार्ट के अंदर आपने ये लिया था, तो अब देखो वापस से देखो, जब हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ गुड लॉट। अब देखो मज़ेदार बात, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट अगर वो था, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिजेक्टिंग ऑफ गुड लॉट कितना है, कम है। यस या नो? तो दिस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर रिस्क, दिस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर रिस्क। ओके, एंड अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ बैड लॉट हो जाए कि जो कस्टमर एक्सेप्ट कर ले, तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड कस्टमर रिस्क। हैव यू गॉट इट? भाई अगर हमने ले लिया डिफेक्ट तो हमारा रिस्क हो जाएगा ना फिर, और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब अपन AQL की बात करते हैं तो इट इज़ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट दैट कंज्यूमर्स आर वेटिंग टू एक्सेप्ट ऑर्डर टू 1 से 2%। ओके, जब हम LTPD की बात करते हैं, मीन्स अपर लिमिट ऑफ द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कंज्यूमर्स आर विलिंग टू टॉलरेट, कि भाई इस लिमिट से ज़्यादा पे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता बिकॉज हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। So it is very important LTP and AQL. Later I will discuss that what should be the AQL and LTP. Okay. Then consumer risk. It is the chance of accepting a lot that contains a greater number of defect than a LPTD limits. Definitely ना, अगर आपका रिस्क हो जाएगा। A producer risk, it is the chance of containing lot that acceptance the quality level will be the rejected. So we have to remember these things when we are making a product और we are valuing a product। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी का मतलब, अब हम एक ओसी कर्व के अंदर वी आर ट्राइंग टू मेक कि भाई किस तरह से केस स्टडी बन सकता है, ओसी कर्व कैसे हम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक नीचे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी टेबल्स गिवन होगा। इस टेबल्स के अंदर आपके AOQ की वैल्यू गिवन होगा, राइट। आपके PAC की वैल्यू गिवन होगी, यानी P अल्फा जो अपन निकालते हैं उसकी वैल्यू गिवन होगी। आपके पास सैंपल साइज गिवन होगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखो इस टेबल देखने का तरीका, आपने ले लिया सैंपल साइज, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम से सपोज 5 है। अब हम देख लेंगे कि भाई 5 के अंदर, अब अगर हमने ले लिया प्रोपोर्शन 0.10, तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखो ज़रा एक बार, जब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 है तो ये 0.10 पे है 0.59, PAC है 0.1985 एंड AOQ है 0.0919। पॉइंट शुड बी नोटेड। ये टेबल्स आपका गिवन होगा, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफेक्ट्स कितने होंगे और ये किस तरह से काम करेगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि इन जनरली जो ओसी कर्व्स होता है वो लिखा हुआ रहता है सैम्पलिंग प्लान्स के अंदर, और टेबल्स हमेशा प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स शो करेगा, वैल्यू ऑफ एन शो करेगा, एंड कम्यूटिव लेवल्स ऑफ डिफेक्ट आइटम्स। देखो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स क्या है भाई, 5 में से कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, 5 में से एक डिफेक्ट हुआ है, वी गॉट इट। तो जनरली ये पता करेगा। तो अगर आपके पास टेबल गिवन हो तो अपन पर सैंपल में से नंबर ऑफ डिफेक्ट के आधार पे हम ये वैल्यू ऑफ P पता कर सकते हैं। जब आपने वैल्यू ऑफ P पता कर लिया तो भाई आप सब कुछ पता कर लोगे, क्यों, आपके पास सैंपल साइज n है। फाइंड द फ्रैक्शन डिफेक्ट P पता कर लिया आपने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, A को D से कर दिया और पॉइजन्स टेबल से आपको PA की वैल्यू आ गई। हैव यू गॉट इट? भाई इधर गिवन है ना ये सारे के सारे वैल्यूज़, तो इट मीन्स यू कैन ईजिली फाइंड ऑल दीज वैल्यू, व्हाट शुड बी द A, व्हाट शुड बी द PAD, व्हाट इज N, व्हाट इज द P। अब जब आपने इतनी चीज़ पता कर लिया तो देखते हैं, एक हमने ले लिया है, एक सैम्पलिंग प्लान हमने डेवलप किया है जिसमें हमने 5 आइटम्स लिया है, लॉट ऑफ N 1000 आइटम्स। इट मीन्स डैट
कैपिटल एन कितना है बेटा 1000, स्मॉल एन कितना है 5, ठीक है। इट मीन्स डैट कि हमने एक 1000 के लॉट से 5 आइटम्स को बाहर निकाल लिया है, और अब बाहर निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसको टेबल्स के आधार पे, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट बाय 100% है तो कितना है 0.994, जब ये 90% है तो 918 80% है, राइट। अब हमने जो चार्ट लिया है, ये हमने n=5 लिखा है रोक, ओके। एंड अपना जो नंबर ऑफ रिजेक्शंस है कितना है 1, यानी हमने क्या किया सी को 1 कर दिया है, ठीक है। इज इट ओके? तो अब देखो जो अपना 0 पे था, अब देखो यहाँ से टेबल देखना सीखो आप लोग, पॉइंट शुड बी नोटेड। हमने n लिया है 5 और एक्सेप्टेंस हमने कहा कि 5 में से अगर एक सही गलत होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, सिर्फ एक गलत होगा तो, ठीक है। एक से ज़्यादा गलत होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो अब अपना जो PSC लेवल है 1 पे, हम 0 पे नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे 1 पे। तो जब जो 0.5 डिफेक्टिव्स था तो 0.9974 था, जब 0.10 डिफेक्टिव था तो 9185 था, जब 0.15 डिफेक्टिव था तो 8352 था, राइट। तो अब देखो जब 0.05 है यहाँ पे, देखो इसको गौर से, तो ये कितना है बेटा 0.9974, जब 0.10 है तो ये कितना है 0.9185, जब 0.8352 है तो नीचे देखो ये कितना है 0.15 है। तो इस तरह से हमने डिफेक्टिव्स के ऊपर परसेंटेज रख दिए जितने आ रहे थे हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू टेबल से। हैव यू गॉट इट? अब आपको टेबल देखना आई थिंक पता चल गया होगा कि हम किस तरह से किसी टेबल को ड्रॉ करते हैं, ओके। अब हमने क्या सिखा रखा था कि जब n5 और C1 हो तो हमने इस पे सारे टेबल्स ड्रॉ कर लिए। अब हमने देखा कि भाई जो भी लॉट्स हैं कुछ भी हैं वो कितने 1 जब हैं तो कितने, अब हमने टेबल्स के अनुसार ये सारे के सारे ड्रॉ कर दिए। अब हमने कहा कि जब देखो कितने 9974, तो हमने कहा कि जब 9974 चांसेज हैं एक्सेप्टिंग अ लॉट विथ 5% डिफेक्ट यानी 0.05, ओके, और 20% डिफेक्ट अगर हो तो उसकी चांसेस कितनी है, ज़रा सामने देखो 0.7373% चांस। हैव यू गॉट इट? तो ये आप ध्यान रखना। मीन्स देखो अब आप सोच रहे होगे अपने को क्या पता चला, अपने को अपने टेबल से ये पता चला जेंटलमैन, हमने अभी टेबल मैंने आपको सिर्फ n=5 C1 पे दिखाया है, n=5 C2 पे भी तो आप दिखा सकते, देख सकते हैं ना अपन। कस्टमर अगर ने कह दिया भाई हम तो उसी कर्व को फॉलो करेंगे, हम बोलेंगे कोई बात नहीं है, हमने अपना एक टेबल बना लिया, चार्ट देख लिया C2 पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी परसेंटेज होता है, उस हिसाब से हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स का ध्यान रखेंगे कि भाई अगर मान लो अपने को पता चले कि अगर अपना डिफेक्टिव मान लो 20% हो गया तो यार 73% तो रिजेक्ट हो जाएगा ना भाई, ये भी 73% एक्सेप्टेंस चांस है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। हैव यू गॉट इट? नंबर ऑफ सैम्पलिंग ऑफ, तो अब आप लोग उसी कर बना लोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ सैंपल्स गिवन होगा, उसके आधार पे जो कितने डिफेक्टिव्स ये कंडीशंस गिवन होंगे हम चार्ट्स के थ्रू इसको ड्रॉ कर लेंगे वैनो इजली, एंड देन यू फाइंड आउट कि व्हाट शुड बी द एक्सेप्टेंस प्रोबेबिलिटी और व्हाट शुड बी द रिजेक्शंस प्रोबेबिलिटी। अब जब हमने बना लिया तो अब देखो हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ले लिया और एवरेज आउट गोइंग क्वालिटी चेक कर लिया कि भाई देखो 0.10 0.20 0.30 0.4 पे कितना था, राइट। तो अब हमने देखा कि अगर हमारा AOQ एवरेज आउट गोइंग क्वालिटी सही है, पॉइंट शुड बी नोटेड, ये जरूरी है किसी भी OC कर्व को फॉलो अप करने के लिए, क्योंकि अपने को AOQ चार्ट से ही पता चलेगा कि वेदर आवर प्रोसेस इज़ राइट और नॉट। अगर ये सही है तो ठीक है भाई, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं कि अपना जो लॉट है वो एक्सेप्ट हो जाए। इफ़ lower the quality of the lot, it means greater the chance it will be rejected. Have you got it? So we have to remember that कि जो AOQ होता अपने उससे निकाला था ना PSC P से, राइट। अब उस टेबल्स पे भी आप देख सकते हो। अब अगर AOQ इज हाइस्ट फॉर अ लॉट क्लोज टू द 30% डिफेक्ट, अगर देखो है ना जिस चार्ट में देखो सबसे ऊपर कितना 30% दिख रहा है, जो 30% डिफेक्ट के, मुझे यहाँ पर ये हायर्स है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम OC चार्ट बनाते हैं। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट, एंड व्हाट वी आर इम्प्लीमेंटिंग फॉर इंडस्ट्री और मैनेजर्स और एवरीवन, दैट हाउ मच एंड हाउ ऑफन टू इंस्पेक्ट,
कंसीडर द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड कंसीडर अ लॉट साइज। ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन वेयर टू इंस्पेक्ट, जहाँ पर इनबाउंड मटेरियल्स आ रहा हो, फिनिश प्रोडक्ट आ रहा हो, प्रायर टू कॉस्टली प्रोसेसिंग आ रहा हो, इन चीज़ों पे हम ओसी चार्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और टूल्स वही यूज करना जो कंट्रोल चार्ट आर बेस्ट इन प्रोसेस प्रोड्यूस एंड एक्सेप्टिंग सैम्पलिंग फॉर इनबाउंड या आउटबाउंड मटेरियल्स, आउटबाउंड चीज़ों के लिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर व्हेन यू आर मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ चार्ट। अब देखो वापस से हमने इसी चार्ट्स को बना दिया था 0.39679 पे। तो हमने क्या देखा कि जो पहले वाला चार्ट है, देखो हमने लिख रखा है ना, ये डिस्क्रिमिनेटिंग है, राइट, और दूसरा वाला लेस डिस्क्रिमिनेटिंग है। हैव यू गॉट इट? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ओसी कर्व्स है वो डिपेंड करता है कि क्या सैंपल साइज है एंड क्या रिस्क है, यानी अल्फा और बीटा पे। ओके, अब वापस से देख लेते हैं भाई, 9 से 10 के बीच 0.10 का डिफरेंस है ना, यस या नो? इट मीन्स इसके बीच जो सैंपल्स पड़ेगा और बीटा भी 1.0 ले लो, तो देखो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो गुड है। 0.03 से 0.9 के बीच इनडिफरेंट है और उसके बाद जो है वो बैड है। तो इट मीन्स डैट जहाँ से बैड है वो आपका LTPD है, ओके। और जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस लेवल्स है। तो हैव यू गॉट इट कि भाई हम कैसे चार्ट बनाएंगे? व्हाट शुड बी द आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग लॉट इज, व्हाट शुड बी द आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीजिंग लॉट इज या रिजेक्टिंग लॉट इज, ओके। अब हम जरा कंपैरिजन करके भी देख लें कि आइडियल में और टिपिकल कर्व्स में क्या डिफरेंस था। भाई अभी तो मैंने आपको एक आइडियल कर्व दिखाया था, सिर्फ परपेंडिकुलर था और किस तरह से एक्सेप्टेंस हो रहे थे, और एक टिपिकल्स है। तो देखो जब हम when you are performing the non-conforming items, prescribed PA is 100% और more than make it PA is 0%। आइडियल में तो सीधे था 100%, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है 100% होना चाहिए, प्रोडक्ट रिजेक्टेंस क्या होना चाहिए 0% होना चाहिए, राइट। दूसरा क्या होना चाहिए कि 100% इंस्पेक्शंस होना चाहिए कि हाँ भाई सब सही है। तीसरा डिवाइडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस बिटवीन 0 to 100 AQL। हैव यू गॉट इट? बट जो टिपिकल्स है उसके अंदर क्या, जनरली आपने कर्व देखा होगा आपका एस शेप में बना होगा, राइट, इंक्रीजिंग बनता रहता है। हमने प्रोबेबिलिटीज़ और एक्सेप्टेंस के पॉइंट को जब जॉइंट करते हैं देन वी आर इजली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस वन इज़ राइट। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग इंस्पेक्शंस करते हैं एंड सैम्पल साइज लेते हैं, फिर उस पर चेक करते हैं कि व्हाट शुड बी द आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज, व्हाट शुड बी द आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शंस इज। देखो हमने दोनों चार्ट्स को बना दिया। अब देखो इसके अंदर क्या है, आइडियल है ना, यस या नो? व्हेयर एज यहाँ पर क्या है, उसी कर्व बन रहा है, एस शेप्स के अंदर बन रहा है। तो इन जनरली जब भी अपना ऑपरेटिंग कर्व बनेगा तो इस तरह से ही बनेगा जो टिपिकल ऑपरेटिंग कर्व्स के अंदर है। आइडियल तो होता ही नहीं है, मैं बता दूं इन जनरली आई डोंट थिंक एनी इंडस्ट्री इज फॉलोइंग द आइडियल ओसी कर्व, हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली मॉडिफिकेशन और सम एरर कम सम टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। So in this graph we have to remember it that कि how can ideal OC curves and typical OC curves deviates? It is completely 0 to 100% for a given fraction defect, whereas for the S-shaped chart is coming for typical operating OC curves. अब देखो characteristics की बात कर लें तो for the ideal OC curves assumes a finite lot, hypergeometric distribution used for this type of curve, binomial or Poisson distributions often provides a good approximations, देता है लेकिन ठीक है, but whereas OC assumes an infinite lot, okay, binomial distribution is the correct one, Poisson distributions provide a good approximation कि चलो भाई इससे वर्क हो जाएगा। तो I think now you have easily understand that कि what should be the difference between ideal OC curves and operating OC curves. Thank you. Hope you have enjoyed. Hope you have understand the things. And if there is any query, you may ask. Thank you.